अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कल होने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की जीत की दुआ के लिए नामपल्ली में वाक़ यूसुफैन दरगाह रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया और मजार पर हाजिरी देते हुए कांग्रेस की कामयाबी के लिए दुआ की। कैमरा और इधर आ जाओ इधर भी रखो। 2021-22 में अकाउंटिंग टाइटल अंडर स्कीम में गुरमिटकल तालुका गजरकोट देहात में नया तामीर किया गया स्कूल के इफ्तिताह एमएलए श्रनु गुड़ा ने अपने हाथों से किया है। इस मौके पर श्रनु गुड़ा ने कहा है कि गवर्नमेंट से दिए जाने वाले स्कूल के लिए कई स्कीम्स हैं, जिसमें बच्चों को शो स्कूल यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप जैसे कई फैसिलिटीज हैं, मगर यहाँ के लिए मैथ्स, इंग्लिश, साइंस जैसे सब्जेक्ट के टीचर्स के वैकेंसी खाली हैं। आने वाले दिनों में उनके जिम्मेदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट में यूथ एमएलए होने की वजह से इन तमाम फैसिलिटीज और गुरमिटकल इलाके के डेवलपमेंट को लेकर आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एस अभिमन्यु, असिस्टेंट इंजीनियर श्रीधर, तहसीलदार नीला प्रभा, सीपीआई दौलत एनकुर्री और गजरकोट देहात के स्कूल्स के स्टूडेंट्स, टीचर और दीगर लोग मौजूद थे। फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। इंग्लिश मीडियम शाले ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। ಯಾಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತಡವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000ನೋ, ಲಕ್ಷನೋ, 2 ಲಕ್ಷನೋ, 3 ಲಕ್ಷನೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಯಾದಗಿರಿ, ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್, ಕಲಬುರಗಿನೋ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಗಾಜರ್ಕೋಟಕ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಶಾಸಕರಾದಾಗ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆದದ್ದು। ಈ ತರದ್ದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ 31, 32 ಸ್ಥಾನದಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಾಗ। ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರಿ, ಈಗ ಯಾರೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ। ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಕೊರತೆ। ಇವತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು, ಸೈನ್ಸು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಸುಮಾರು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು 150ಕ್ಕಿಂತ 200 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನದಲ್ಲಿ। ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ತತ್ತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು। ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದೀರಮ್ಮ, ನಾನು ಬಹಳ ಕಡೆ ಓದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಿಡಿಪಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಡಿಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಾಗ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ಬಹಳ ನಡೀತಿದೆ। ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ
ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೋದರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಓದಲಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೆಂಬುದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಪಾಲಕರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗ್ರಸ್ತಗಳು, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಂಶದಿಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ನನಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಲಿ, दरख्वास्त दहिंदगान जिनकी दरख्वास्तें मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ज़र-ए-इल्तवा हैं, वो सिकंदराबाद के इलाकाई पासपोर्ट ऑफिस का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल बुध के अलावा हर रोज कुल 250 अपॉइंटमेंट्स जारी किए जाते हैं, यानी 125 ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स वॉक इन और 125 ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स। ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स की सूरत में पहले आइए पहले सर्विस की बुनियाद पर टोकन जारी किए जाते थे, जिसमें दरख्वास्त दहिंदगान को अपना टोकन लेने के लिए दिन के ओआइल में आना पड़ता था और जो लोग अपना टोकन हासिल नहीं कर पाते थे उन्हें एक बार फिर दफ्तर जाना पड़ता था। इस महीने की 20 और 21 तारीख को विजयवाड़ा में सीपीआई राष्ट्र समिति के ज़र एहतमाम रियासत में शदीद खुश्क साली और काले पानी की दोबारा तकसीम के मसाइल पर 30 घंटे का एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शिरकत की थी और इन इक़दामात के साथ यकजहती का इजहार किया था। इसी तनाजुर में सीपीआई राष्ट्र समिति की जानिब से रियासती हुकूमत की तरफ से उठाए जाने वाले फौरी इक़दामात के बारे में एक अर्जी पेश की गई है। रियासत भर के 440 से ज्यादा मंडलों में खुश्क साली की शदीद हालात हैं। तकरीबन 40 मंडलों को शदीद गुर्बत का सामना है। तमाम अजला सबसे कम बारिश के जुमरे में है। खरीफ सीजन खत्म हो चुका है। पूरे खरीफ सीजन में 29.8% की कमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। AA के अमीन सीनियर बीआरएस लीडर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो जाने माने मिनॉरिटी लीडर है रियासत तेलंगाना के, आज मीडिया से सवालात के जवाब देते हुए साथ में खलील अहमद भी मौजूद रहे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल अल्लाम खान अमीन, सीनियर लीडर बीआरएस पार्टी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और मेरे साथ खलील अहमद साहब, सीनियर बीआरएस लीडर। अल्हम्दुलिल्लाह बीआरएस का कैंपेन जो है बखूबी अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम तक जो है ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, और उम्मीद है कि आवाम जो है काफ़ी मुतमईन है पिछले 9 साल में, और काफ़ी कुछ जो है शक व शुबा भी जो है आवाम के बीच में जो है कुछ आ रहे हैं, और कई पार्टीज़ जो है अपने अपने तरीक़े से जो है आवाम को जो है अपनी रुझान में खींचने की कोशिश कर रही है। और मैं आज जो है कुछ मीडिया को एड्रेस करने की कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज शाम से पहले जो है कुछ एड्रेस करने के लिए जो है इंशाअल्लाह ताला हाजिर हुआ हूँ आप तमाम के सामने। इंशाअल्लाह अभी आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सवालात और ऐसे मसाइल हैं साहब, उसके ऊपर क्या बोलना चाहिए, जैसे कि कैसे रहा आपका कैंपेनिंग अब की बार? देखें साहब, 2 बड़े पार्टी मुल्क के ऐसा दिख रहा है कि एक सिक्के के 2 रुख है, क्योंकि जितना पहले एक मीडिया एक पार्टी को पिछले 9 साल से पूरा नेशनल मीडिया जो है जिस तरीके से प्रमोट करती थी, आज वो प्रमोशन जो है कांग्रेस पार्टी को कर रही है। तो इसका मतलब हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि आखिर मंशा क्या है, किस तरीके से जो है लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं रेवंत रेड्डी के बारे में, वो खुद खुबुले हैं कि वो आरएसएस के एक कारकुन रहे हैं। आम पार्टी का ये भी सवाल है कि बीआरएस पार्टी कैसी है? नहीं, और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं अभी हमारे फेरोज खान साहब का भी जो है स्टेटमेंट आया, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है उन्होंने लागू कराना चाहते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, वो शरीयत को नहीं मानते हैं।
जो शरीयत को नहीं मानते, क्या वो माइनॉरिटीज़ उनकी बात मानेंगे? क्या माइनॉरिटीज़ शरीयत को कितनी अहमियत देते, वो आप तमाम सोचने की ज़रूरत है। इस बारे में जो है हमको बहुत गौर व फिक्र करते हुए जो है फिरोज खान की कितनी तायद करना चाहिए, रेवंत रेड्डी की कितनी तायद करना चाहिए, कांग्रेस की कितनी तायद करना चाहिए, जिसका प्रमोशन जो है गोदी मीडिया कर रही है। ये अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। ये जैसे कि काफी आवाम में ये एक ही शोर जो है कई बार हर हैदराबाद की नहीं बोल के पूरे टोटल तेलंगाना का ये सवाल है, मुद्दा मेन के 12% रिजर्वेशन में आपका क्या कहना है? आप जो जैसे कि पार्टी के कायदे लीडर है। देखिए 12% रिजर्वेशन के बारे में तो ऑलरेडी जो है असेंबली में बिल पास हो चुका है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है फॉरवर्ड भी किया गया है। अब आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है और किस तरीके से जो है वो काम हो सकता है। जैसे कि पार्टी अगर जीत जाने के बाद क्या इनके वादे क्या करेंगे आपकी BRS पार्टी? देखिए वादों को खुबलाना, वादों को पूरा कराना ये अवाम की भी जिम्मेदारी है। जब अवाम वोट देकर जिता रही है, अवाम जो है उसी तरीके से जद्दोजहद कर कर जो है उसको जो है अमलिया अंदाज में भी देखने की ताकत रख सकती है, क्योंकि हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है हमारा। जो लोग जैसे कि और एक ही सवाल है साहब, जैसे कि मस्जिदों का मुद्दा लेकर बहुत सी यहाँ की हैदराबाद की आवाम नाराज है कि उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए मस्जिदों के मामले में माशाल्लाह से KTR साहब का बहुत बेहतरीन बयान आया है। उस बयान के बाद भी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं अपने ही लगाते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, होंठ भी अपने हैं, दांत भी अपने हैं। ये जो भी काम गवर्नमेंट करती है एक एडवाइजरी बॉडी से एक राय मशवरा लेकर करती है। जो बॉडी उनको जिस तरीके से राय मशवरा देती है, और वो बॉडी भी नहीं समझी कि इस तरीके से जो है अवाम में जो है बदनामी आएंगी, इस तरीके से जो है पार्टी को जो है एक जो है बैड नाम आ जाएगा, अवाम भी नहीं समझी थी और ये वो पार्टी भी नहीं समझी थी और वो लोग भी नहीं समझे थे जो एडवाइजरी बॉडी में थे। तो इस सिलसिले में जो है इंशाल्लाह मैं आपको एक चीज़ बता दूं आपको मैं, कि जब शमशाबाद की मस्जिद को गिराया गया है, 4 दिन के अंदर जिस तरीके से एहतजाज किया गया, तो कुछ ही महीनों में जो है वहाँ पर मस्जिद बन गई और वहाँ पर मस्जिद में जो है नमाज फिर कायम हो गई। ये जो है अवाम की जीत है। इस बारे में ये अवाम जिस तरीके से एहतजाज करेंगी, जमहूरी हक को अपने। मेरा सवाल यही था कि आप उसका जवाब नहीं दिया, BRS पार्टी कैसी है और उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखें साहब, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद KCR साहब जो जद्दोजहद करे हैं, ये तारीख़ी जद्दोजहद रहा है। वो अपनी जान जोखम में डालकर भूख हड़ताल जिस तरीके से करे हैं, और फिर जब कभी भी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो भी पार्टी आती थी वो वादे करती थी मगर अपने वादों पे जो है मुकर जाती थी, तो जो भी जब भी ज़रूरत पड़ी वो MP की सीट से भी जो है इस्तीफ़ा दिलाए, MLAs को भी इस्तीफ़ा दिलाए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्टी जो है उनके पीछे जो है हमेशा जो है लब्बैक कहकर जो है वो तेलंगाना को हासिल करने के लिए जो है हमेशा जद्दोजहद करते रहे। और मैं आपको इम्पोर्टेंट एक चीज़ बता दूं आपको मैं, जितनी जद्दोजहद तेलंगाना के लिए कोई और जितने लोग लीडर्स करे, उसमें सब में कामयाब जो है लीडर जो है हमारे KCR साहब थे। तो मैं एक चीज़ अवाम को कहना चाहता हूँ, लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, रखना मेरे दोस्तों इस मुल्क को, इस रियासत को संभाल कर, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी आप लोग के हाथ में है। एक आपने 65 साल आपने दूसरी हुकूमतों को जो है यहाँ पर दूसरी पार्टियों को जो है यहाँ पर हुकूमत करने के लिए आप देखे हैं। आप ये 9 साल में जो है यकीनन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीं तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो कोई कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, तो वो चूक जो है इंशाल्लाह आपकी राय मशवरों के साथ, हमारी राय मशवरों के साथ इंशाल्लाह ताला हम हाई कमांड तक लेके जाएंगे। इंशाल्लाह ताला जो भी शक व शुबा है, जो भी चीज़ की मांग है, हम जो है एकजुट होकर जो है इंशाल्लाह ताला हमारी पार्टी को जो है कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में आप आवाम को क्या कहना चाहिए और आपकी तरफ से क्या एक मैसेज? आखिरी में मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग ने काफ़ी कुछ देखा है, आप लोग समझदार लोग हैं। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हटा तो सारे मजहबों के लिए, अगर लागू हुआ तो सारे मजहबों के लिए जो है वो इंतहाई जो है गलत जो है उसके असरात रहेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो तायद करता उनको जो है हम इख्तिदार में लाना नहीं चाहिए। आप जैसे कि एक मुसलमान हैं,
इस्लाम में भी बताया जाता है कि अगर वोट अपना हक है तो उसको किस तरह से देना चाहिए और किस बुनियाद पे, जरा उसके बारे में। देखिए, मैं और एक चीज़ आपके पहले सवाल के ऊपर एक चीज़ कहना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं, कि बीआरएस पार्टी आपके घर की पार्टी है। आपके लिए केसीआर साहब जद्दोजहद कर कर जो है रियासत तेलंगाना लेकर आए हैं। आपको जो भी चीज़ का जो है जिद करना है, आप अपने बड़ों से कर सकते हैं। आपने अपनी जिद की कामयाबी जो है शमशाबाद की मस्जिदों में देख चुके हैं आप। उसी तरीके से जब हम जद्दोजहद करेंगे, हमारा जमहूरी हक है, यकीनन हमारा जमहूरी हक है, जो भी एडवाइजरी बॉडी में वहाँ पर उनको चाहे मस्जिदों को गिराने के लिए, चाहे कोई दूसरे मामलों में भी जो है, चाहे माइनॉरिटीज़ के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, कोई भी चीज़ का जो है उनको कुछ गलत एडवाइजर्स जा रहे हैं, तो हम हमारी आवाज़, हमारा जमहूरी हक के साथ जो है हम हमारे अपने आप को जो है इंशाअल्लाह ताला मनवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एपी बीआरएस लीडर आरकोट कृष्णा प्रसाद ने तिरुमला में नारे लगाए और सीएम केसीआर के जरिए तारीख रकम करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसने रियासत तेलंगाना को तरक्की के अमल में मुल्क में पहले मुकाम पर रखा है। इस मौके पर खिताब करते हुए कृष्णा प्रसाद ने तेलंगाना में आबाद इलाका आंध्र के अवाम और तेलंगाना की पूरी अवाम से जुमेरात को होने वाले इंतखाबात में बीआरएस पार्टी की हिमायत करने और रियासत की तरक्की में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने तेलंगाना को तमाम शोबों में तरक्की देने और उसे मुल्क में एक मॉडल रियासत बनाने के लिए केसीआर की सताइश की। कमिश्नर ऑफ पुलिस सैबराबाद स्टीफन रविंद्र आईपीएस ने टीएसएलए तेलंगाना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2023 के आने वाले इंतखाबात के हवाले से एक प्रेस नोट जारी किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सैबराबाद पुलिस ईसीआई के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए इन इंतखाबात के गैर जानिबदाराना, आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाएगी। सैबराबाद पुलिस ने पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से इंतखाबात के आजादाना और मुनसिफाना अंदाज में और महफूज माहौल में इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब और हिफाजती इंतजाम किए हैं। तमाम सियासी जमातों और मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों को आजादाना और मुनसिफाना अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए यकसा मौका फराहम किए गए। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।